عرفان صاحب میں آپ سے تو آئیں، جس طرح کہ ہم سب آج پام سنڈے کی عبادت میں سب شریک ہیں. بردر ربی ہمارے ساتھ جوائن ہو چکے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ قبل سے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں. ایک کورس کے لیے میں بردر ربی سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو کھولیں اور خدا کے ذریعے خدا کی ستائش رشتے میں. بردر ربی. سارے جے مسیح جے مسیح کی. جے مسیح. جی تو پربھو آپ سب نے بہت آشیش سے برکت ہے. تو آئیے پربھو کے نام واسطے ایک پڑھ بناؤں گے. تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، میٹھے تیرے نام دیاں گلاں، 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 میٹھے تیرے نام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، ساڈے ہتھ وچ روندے دن ساڈے اگلے، مل کتے آ کے سانو انہاں دکھاں دے بدلے، سوچ کے انعام دیاں گلاں، 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 سوچ کے انعام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، ایتھے تھوڑی زندگی کچھ دناں دا آرام اے، رات بے چینیاں تے دن بدنام اے، خدا دے آرام دیاں گلاں، 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 خدا دے آرام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، تیرے کلام دیاں گلاں، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، سچی جان پا دیندیاں، سچی جان پا دیندیاں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. بردر ربی بہت شکریہ آپ کا. خدا کی ستائش میں کھلا آئے ہم اب خدا کے کلام کو موقع دیں، اور آج جس طرح کا ہمارا جو سیشن ہے ہم سب مل کر تھوڑا تھوڑا آج گرو کی دیوار پر اپنی اپنی خیالات کا اظہار کریں گے خدا کے کلام میں سے حوالوں کے ساتھ. جس طرح مناسب لگے تو میں ہمارے ساتھ پاسٹر اشرف ہے، اشرف عرفان صاحب ملتان سے، شہر ملتان سے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے اس موضوع کا آغاز کریں. اوور ٹو یو پاسٹر عرفان. آپ سے درخواست کیا تھی کہ آپ آج کے اس خوبصورت خدا کے کلام کے موضوع کا آغاز کریں، اور 3 منٹ درکار ہے. سب اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ تمام لوگوں کو فردر اپنے وقت مہیا کرنا ہے. اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیے گا، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی بات کو مختصر طور پر آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے. جی اوور ٹو یو. مسیح یسوع کے ببرکت زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی سلامتی ہو. اس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہم پام سنڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو پہلا پام سنڈے جب خدا یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہوا، اس وقت کی یاد کو ہم آج دوبارہ سے اس کو تازہ کرتے اور
वही स्केच हमारे जहन में होता है। आए खुदा के कलाम से रहनुमाई लेंगे। मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 8 आयत। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। कलाम पाक का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत का बायस है। जब हम खजूरों की डालियों के मुताल्लिक निगाह करते हैं तो दर हकीकत ये जो खजूर की डालियां हैं, ये खजूरों का एतवार हम कुछ सवालात हमारे ज़हन में होता है कि खजूरों का एतवार क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब, इसकी अहमियत क्या है। खजूरों का एतवार यानी कि पाम संडे मसीही मसीही मजहब में और रिलीजन में ये एक अहम मजहबी त्यौहार है जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा यीशु मसीह का जो बादशाहों का बादशाह उसका शहाना इस्तकबाल जब यरूशलेम में किया गया और यीशु जो बादशाहों का बादशाह है उसका इस्तकबाल किया गया, जिसमें लोगों ने खजूरों की डालियां लेकर और नारे लगाते हुए होशाना की सदाएं फिजा में उन्होंने बुलंद की और अपने बादशाह को वेलकम किया। खुदा यीशु मसीह की यरूशलेम में खुश आमदीद कहा। खजूर की डालियां दर हकीकत ये फतहमंदी की अलामत है। और मैं आपको बताता चलूं, अहद अतीक में जब बादशाह विक्टोरियस होता था तो उसकी जो रियाया थी, उसके जो लोग थे खजूर की डालियों के साथ उसका इस्तकबाल करते थे। खजूर की डालियों पर अगर निगाह करें तो इसकी जो डालियां होती हैं वो खड़ी हुई उनकी शेप होती है। इसका मतलब ये है कि वो फतहमंदी की अलामत इनको तस्वर किया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह, हम देखते हैं कि वहां उस बादशाहों के बादशाह जो सच्चा बादशाह है, उस जैसा कोई बादशाह नहीं है और उसकी बादशाहत का आखिर कभी नहीं होगा। वो सच्चा बादशाह है, लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस सच्चे बादशाह की झूठी ताजपोशी की गई। वहां लोगों ने उस सच्चे बादशाह को की झूठी ताजपोशी की। और वैसे ही बहुत सारे हमारे लोग हमारे अजीज हैं जो पाम संडे तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो भी उन्हीं लोगों की तरह करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ डालियां पकड़कर हाथ में और गीत गाकर और पाम संडे की इबादत में शामिल होकर वो सिर्फ अपने आप को समझते हैं कि हमने यीशु बादशाह को वेलकम कर दिया, लेकिन उनकी जिंदगी में गुनाहों का, बदियों का होना, उनकी जिंदगी में ज़िनाकारी का होना, उनकी जिंदगी में नशे का होना, दर हकीकत वो उस बात की तरफ ध्यान दोबारा लेकर हम जाते हैं जब वहां के लोगों ने भी खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त शहाना उसे वेलकम किया, लेकिन अपने दिलों को उसके लिए नहीं खोला था। तो इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, अगर हम उसे वेलकम करते हैं, उसको हम बादशाहों का बादशाह तस्लीम करते हैं, उसे हम जब बादशाह कहते हैं, हकीकी बादशाह अपने जीवन में उसे तस्लीम कर लेते हैं, तो जरूर है कि हम अपने दिलों में उसको वेलकम करें। और जिस तरह हम खुदा के कलाम में देखते हैं, मत्ती की ही अंजील और उसके उसी के 21वें बाब की आई थिंक उसकी तीसरी आयत मुबारक है, उसमें से हम एक खूबसूरत बात सीखेंगे। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है और वो फील फॉर उन्हें भेज देगा। खुदावंद यीशु मसीह जब अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को भेजते हैं कि 7 वाले गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और तुम उसे जब खोलोगे तो अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम कहना कि इसे खुदावंद को इसकी जरूरत है। तो मेरे अजीजों, आप भी जब खुदावंद यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, अगर किसी किस्म का कोई शख्स आपको टीज करता है, आप पर जुमले कसता है, आप पर बातें करता है, आप इस बात को एक तरफ कीजिए और अपने आप को खुदा के हुजूर लाइए, क्योंकि खुदावंद को आपकी जरूरत है। और याद रखिए, हमारी उन जानवरों से बढ़कर ज्यादा अहमियत और खुदा की नजर में हमारी अहमियत ज्यादा है, क्योंकि
ہم خدا ہم سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور خدا کو ہماری ضرورت ہے. میں ایک خدا کی خادمہ کے بارے میں دیکھ رہا تھا. خدا کی خادمہ کو جب وہ کہتی کہ مجھے ویلکم کیا گیا جب خدا کے کلام کے لیے، تو میرے گلے میں مالا پہنائے گی، ہار پہنایا گئے، اور تو خدا کی خادمہ بیان کرتے کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وہ کہتی کہ میں تو اپنے آپ کو اس گدی جیسا تصور کرتی ہوں جس پر خدا یسوع مسیح سوار ہوئے اور اس کی شان بڑی. میرے عزیزو، ہم بھی ایسے ہی اپنے بادشاہ کا استقبال کریں کہ ہم اس کے نام سے پہچانے جائیں. ہم اس بات پر ہمیں جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کرسچن ہیں اور آپ کرسچن ہیں، آپ کی زندگی میں یہ کام ہے اور آپ کرسچن ہیں، ہم ان کاموں سے نہیں بلکہ مسیحی چال چلن سے دوسروں پر یہ بات ثابت کریں کہ ہم کرسچن ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہماری پہچان مسیح سے ہے اور واقعی ہماری زندگیوں کا وہ بادشاہ ہے. اور اس بادشاہ کی حلیمی اور فروتی کا انکساری کا یہ ثبوت ہے کہ اس بادشاہ نے آنے کے لیے ہاتھی یا گھوڑے کا انتخاب نہیں کیا بلکہ گدھے کا انتخاب کیا، جو کہ حلیمی کی علامت ہے، جو کہ امن پسندی کی علامت ہے، اور وہ امن اور محبت کا درس دینے اس دنیا میں آیا. خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. God bless you. God bless you. سر بہت شکریہ. آپ خوبصورت طریقے سے آج کے دن کے حوالہ سے بہت خوبصورت باتیں خدا کے کلام سے ہم سب تک پہنچائی. میں چاہوں گا اس گفتگو کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. بردر ربی ہمارے ساتھ ہیں، کافی دور سے انہوں نے جوائن کیا. میں چاہوں گا میرے احترام عزت دیتے ہوئے میں چاہوں گا کہ بردر ربی جو خدا کا وہ آپ کو کھا رہا ہے، ضرور آپ بھی اپنی شراکت جو اپنا حصہ خدا کے کلام میں ضرور ڈالیں. اوور ٹو یو بردر ربی. بردر ربی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں. I think وہ آف ہو چکے ہیں. تو آئیں گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میں سسٹم مسکین سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں اور بزرگ کے پاس متعلق جو کچھ وہ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور. میں چاہوں گی کہ بھائی فیاض جو ہیں وہ اس پہ بات کریں. میں سب سے اینڈ پہ بولوں گی، آپ بھائی فیاض سے کہیں کہ وہ بات کریں. چلیں. فیاض صاحب آپ سے درخواست کیا تھی کہ آپ ضرور مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام، اور میں آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے یہ ہمیں موقع فراہم کیا. آج ہم پام سنڈے کی عبادت میں شریک ہیں اور نہایت خداوند کے شکر گزار ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں یہ اس کو یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اس کی 12 آیت سے دیکھ لیتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اس کی 12 آیت سے میں پڑھتا ہوں. پاک کلام میں لکھا ہے، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر برکت ہو. آمین. یہ جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں پام سنڈے کے بارے میں، اور یہاں پر بہت واضح ہے کہ جب خدا یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کا استقبال کرتے ہیں. اور یہ روایت اسی وقت سے چلی آ رہی ہے. اور یہ کب ہوا؟ ہم جانتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے سالانہ طور پر عید فصح منانے کے لیے یروشلم جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق کسی نے یہ بتایا کہ تقریباً اس وقت یروشلم میں 20 لاکھ لوگ تھے. اور لوگ جو ہیں، اور جب ہم اس حوالے کو، اس منظر کو پڑھتے ہیں
तो हम इसके ऊपर भी जो टॉपिक मेरे पास बाइबल में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है यरूशलेम में शहाना दाखिला। खुदा यीशु मसीह जो है बड़ी शान और शौकत के साथ एक बादशाह की तरह यरूशलेम में दाखिल होते हैं। यीशु को पता है, उसको मालूम है, वो जानता है कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे स्लीप पर लटकाया जाएगा, मेरी जान लेने की कोशिश की जाएगी, मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो बड़ी खुशी के साथ, बड़ी शादमानी के साथ यरूशलेम में जाता है, इसलिए कि खुदा बाप के अजली मंसूबे को जानता है, वो अपनी कुर्बानी को जानता है। हम जानते हैं पाक कलाम के जरिए, पाक रूह के जरिए कि वो असली ज़िबा किया हुआ बर्रा है, उसके खून से हमें निजात मिलती है, शिफा मिलती है। और हम इस बात को सीख चुके हैं कि ये निजात का मंसूबा किस तरह जो है तकमील पाता है। और हम देख रहे हैं कि बड़ी भीड़ जो है खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो ली है, और लोगों ने इस बात को सुन रखा है कि जब उसने लाजर को जिंदा किया था और उसने बहुत सारे मौजे किए थे, भीड़ जो है यीशु को देखना चाहती है, यीशु को मिलना चाहती है। भीड़ ने इसकी करामात मौजात के बारे में सुन रखा है, और लोग बड़े हजूम के साथ उसके पीछे पीछे चलते हैं और नारे लगाते हैं, होशाना के नारे लगाते हैं। और आज फिर मैं इस बात को बताना चाहूंगा, होशाना के मैनी है आवर साल्वेशन, हमारी निजात, जीसस सेव अस, हमें बचा। और उस वक्त जो यहूदी लोग थे, इस्राएली लोग थे, एक बादशाह के मंजर थे, एक मसाया के मंजर थे कि एक बादशाह आएगा जिसका नाम मसाया है, वो हमारे सारे मसाइल का हल करेगा, वो हमें जॉब दिलाएगा, वो हमें हमारी फाइनेंशियल हेल्प करेगा, वो हमें बीमारियों से बचाएगा, वो जितने हमारे सियासी, आईनी, दुनियावी मसाइल हैं उन सब से हमें निजात देगा। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, जिस वक्त मुझे सुनते हैं या इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, मैं बता देना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है हमें रूहानी आजादी देता है, हमें इब्लीस की कैद से छुड़ाता है, हमें शैतान की कैद से छुड़ाता है। और ऐसे लोग जो रूहानी तौर पर अभी तक बंधनों में बंधे हुए हैं, बुत परस्ती में हैं, इब्लीस के पीछे दौड़ते हैं, झूठ और फ्रेब को अपनी जिंदगियों के लिए सहारा बनाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए निजात लेकर आया था और आया है। उस वक्त लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचाना, और मैंने पाक कलाम में यह सीखा कि उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह रोए, इसलिए कि उन्होंने महसूस किया कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि मैं किस राह पर जा रहा हूं, किस सूए जा रहा हूं। वो सूए धार थी, वो सूए कलवरी थी, वो सूए सलीब थी जिधर को यीशु जा रहा था। खजूर की डालियां, जैसा कि हमने सीखा, खजूर जो है फतेहमंदी, कामयाबी और अमन का निशान है, विलिंगनेस का निशान है। जब हम अपनी रजामंदी से कोई काम करते हैं, जब हम अपनी रजामंदी से यीशु के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, खजूर की डालियां ये साबित करती हैं। और खजूर की डालियां हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ को शो करती हैं, सिंबल ऑफ इटर्नल लाइफ है। हमने देखा खजूर जो है वो तरोताजा रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। पाक कलाम बताता है सादक जो है वो खजूर की शाखों की मानद होगा, सादक जो है खजूर के पत्तों की मानद होगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती, उसके घर में हर तरह की बरकत होती है। हमें रास्तबाजी की जिंदगी इख्तियार करनी है, और हमने रास्तबाजों को देखा है, उनको बड़ी इज्जत, शोहरत, दौलत, हर चीज मिल जाती है, और खुदा उन्हें इब्लीस की कैद से भी आजाद करता है, वो रूहानी जंग भी जीतते हैं। और हमने क्या देखा ज़िक्रिया की किताब में, उसका 9 बाब, जब हम उसकी 9 से 12 की स्टडी करते हैं, तो वहां पर भी पेशन गोई की गई है कि खुदा यीशु मसीह जो है एक बादशाह आएगा, वो गधी के बच्चे पर सवार होगा। मैं पाक कलाम में से पढ़ना चाहूंगा, ज़िक्रिया किताब
اس کا 9 باب اس کی 9 سے 12 آیت پاک کلام میں لکھا ہے اے بنت سیون تو نہایت شادماں ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مزہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر اور درہ فرات سے انتہائی روئے زمین تک ہوگی۔ کیا دیکھتے ہیں ہم؟ بہت سال پہلے پیشن گوئی کی گئی، اور کیا کہتا ہے اے بنت سیون شادماں ہو، خوشی منا، شادمانی کر۔ آج ہم بھی اس بات پر شادمانی کرتے ہیں، آج ہم بھی اس بات پر خوشی مناتے ہیں، آج ہم اس بات پر للکارتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے۔ ہم اس کے غموں کو دیکھتے تو ہیں، ہم اس کے دکھوں کو محسوس کرتے تو ہیں، لیکن ہم اس میں شادمانی کرتے ہیں۔ پاک کلام بتاتا ہے افراہیم بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، افراہیم جو تھا یوسف کا بیٹا تھا، اور پاک کلام میں لکھا ہے میں اس کی رتھوں کو گھوڑوں کو توڑ ڈالوں گا، اور اسی طرح یہودا کی کمان کو جیسے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے جھکا دوں گا۔ قدرت جلال ہمارے یسوع مسیح کا ہے۔ اب زبور 20 میں لکھا ہے کسی کو تو گھوڑوں اور رتھوں پر بھروسہ ہے، پر ہم تو اپنے خداوند ہی کا نام لیں گے۔ یہ جو یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ ہے یروشلم میں، اور تجربے کی ڈالیاں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خدا یسوع مسیح کو کس قدر محبت اور پیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے کپڑے، نئے کپڑے، گھروں سے اٹھا کے کپڑے، اپنے تن کے کپڑے اور کھجور کی ڈالیاں اور زیتون کی ڈالیاں اس گدھے کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور ہجوم پیچھے نعرے لگاتا ہے، شور کرتا ہے ہوشانہ ہوشانہ، خدا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری جنگ نہیں کرتے، دنیا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں ہے، دنیا میں امن کا مزہ سنانے کے لیے ہے، قوموں کو پیس فار دا نیشنز۔ جیسس کرائسٹ came to tell the nations peace. He is preaching peace for the nation. میرے عزیزو، ہمیں بھی خدا یسوع مسیح کا دل لینا ہے، اس کے روپ میں ڈھل جانا ہے، اپنے اندر، اپنے دل میں، ذہن میں، سوچ میں پیس کو لانا ہے، اور جھوٹ اور فریب اس کا کبھی بھی سہارا نہیں لینا، تاکہ ہم خداوند سے برکت پائیں، تاکہ اس قربانی جو اس نے ہمارے لیے دی وہ کسی طریقے سے بھی رائے نہ جائے۔ ہمیں اس کی قربانی کو اپنی روح میں قبول کرنا ہے، اور خدا یسوع مسیح جو ہے امن کا بانی ہے، وہ ہمیں صلح اور محبت کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور جب وہ پیدا ہوتا ہے وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا تولد ہوا جو سلامتی اور امن کا شہزادہ ہے، وہ صلح کا شہزادہ ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، آج اگر ہمیں کہیں بھی ویکنس ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ویکنس پر کنٹرول کریں اور پیس کے پیامبر بن جائیں، امن کے لمبردار بن جائیں، صلح کے شہزادے بن جائیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے خدا یسوع مسیح ناصری کا جلال ظاہر ہو۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پر ہم بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں جتنا وقت دیا گیا ہے ہم اسی میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے سنا اس کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، یہ متی کی انجیل اس کے 21 باب میں لکھا ہے، یہ مرکز کی انجیل اس کے 11 باب میں لکھا ہے، یہ لوکا کی انجیل اس کے 19 باب میں لکھا ہے، یہ یوحنا کی انجیل اس کے 12 باب میں لکھا ہے، اور پاک کلام جو ہے اسے بڑی وضاحت سے اور بڑے نئے نئے انداز سے پیش کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تن من دھن خدا یسوع مسیح کے حضور پیش کر دیں، اس کی صلیب کے نیچے پیش کر دیں، اور یہ سیکھ لیں کہ اس کے مار کھانے سے، اس کے خون بہانے سے ہم شفا پاتے ہیں، روحانی شفا، جسمانی شفا، اور سارے مسئلوں کے ہمیں حل مل جاتے ہیں۔ ہمیں مسیح کو پہچاننا ہے، ہمیں مسیح کے جلال کو دیکھنا ہے، ہمیں مسیح کے روح کو دیکھنا ہے، تاکہ ہم برکت پا سکے۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ پاسٹر غنی صاحب بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت طریقے سے اس دن کے حوالے سے
फजूर के इतवार के हवाले से खूबसूरत खुदा के कलाम में तफसील के बयान के बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि इस खूबसूरत बाबरकत मौजू को से खुदा के कलाम की तवासत से सीख रहे हैं। मैं चाहूँगा बेटी मुस्कान या अगर पास सब अगर ऑनलाइन है, आई थिंक बेटी मुस्कान हमारे साथ ऑनलाइन, अगर वो कुछ अपने को खोलना चाहती खुदा के कलाम के लिए तो आज़ादी बेटी मुस्कान आपके लिए, आई थिंक वो ऑफलाइन हो गई है। चले सिस्टर नुसरत या कोई और है अगर वो ऑनलाइन हैं तो वो बात करना चाहें। सिस्टर ये खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरा साथी हो। हाँ जी, मेरा तो कुछ इंग्लिश उर्दू दोनों में मिक्स होगा कि हम देख सकते हैं कि जब खुदावन ने इस्राएल को गुलामी से निकाला, इजिप्ट की गुलामी से, तो खुदावन उनको 40 साल रखा। खुदावन ने उनकी इस तरह परवरिश की, उनको इस तरह खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी खुदावन को वो अपना बादशाह मानने से इनकार करते थे, क्योंकि इस्राएल एक ऐसी कौम थी कि वो 400 साल गुलामी में रहने के बावजूद भी वो इसी तरह मेंटली स्कार्ड थे कि वो अभी तक वो उस ऑपरेशन से निकल नहीं पा रहे थे। तो खुदावन को था कि ये मुझे अपना बादशाह मानेंगे, लेकिन मूसेस ने उनको कहा भी, लेकिन वो फिर भी खुदावन को अपना बादशाह मानने से उन्होंने इनकार किया, और फिर भी उन्होंने दुनियावी रवायतों को नजर सामने मद्देनजर रख के उन्होंने दुनियावी बादशाह को मांगा। तो खुदावन ने उनको कहा कि तू इनको बादशाह देना। मुझे पता है कि इन्होंने मुझे बादशाह मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि खुदावन उनकी हर चीज से वाकिफ था। So let me see the when the king is entering into the Jerusalem, he was entering, eternal king was entering into Jerusalem. We all know that. And we can see from the New and Old Testament, the reason of that, the God was entering into the Jerusalem because God is like, it was an appointed time. This is the appointed time through the Bible history, through the Father, that the Father made these appointments with the Moses, that I will be doing these such things into these appointed time, which is my holy feast. So हम जानते हैं कि जब बादशाह जो है कि वो यीशु मसीह, जबकि लूक कह रहा है कि नए नामे से हम पढ़ेंगे कि and he rode along the people, spread clothes on the roads in front of him. Then the Jesus started down the Mount of Olives. His large crowd of disciples were happy and praised God because of all the miracles they had seen. They shouted, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in him and to glory to him." फिर हम उसके आगे जाके देख सकते हैं कि उसके बारे में पुराने अहदनामे से खुदावन के बारे में बात, जो कि मतलब खुदावन यीशु मसीह की एंट्री के बारे में प्रोफेसीज हुई, उससे यीशु मसीह के एंटर होने से पहले 700 or 600 years ago, that the prophet Isaiah prophesied, that prophet Zechariah prophesied, even though the reason why the Jesus was entering, we all know, because God chose these holy nations to bring the salvations to all mankind, but they failed it. Then the God had to come himself and tell them that who is the king. Look, your king is coming. That is why Jesus came down, and Josiah is saying that the Lord has, we can read Josiah 62 verse 11, the Lord has made a proclamations to the end of the earth. It means that Khudawan ne, he has set the summon to the whole earth, to all mankind. Say to the daughter of Zion, who is the daughter of Zion? मैंने कितनी दफा कहा है कि खुदावन ने जब भी अपनी कौम का और जब भी अपने लोगों का जिक्र किया तो उसने वुमेन का सिंबल यूज किया है. The daughter of Zion is the daughter of nation of Israel. So nation of Israel को वो कह रहा है कि उसको सारी दुनिया को मैसेज किया कि सारी दुनिया आके उसको बताओ कि तुम्हारा बादशाह आ रहा है. See, your savior comes in, see, his reward is in his hand. कि बादशाह आ रहा है, कि मीन के उसका रिवार्ड क्या है, कि that mean he is coming to reconcile and he is coming to reimburse whatever has been stolen from him. So he is coming to reimburse. What is he going to reimburse? He's going to reimburse the assembly to the church.
Who is the church? He's coming to reimburse us. He's coming to pay the price for us, like, because his destiny was that he was destined to be slaughtered. He was destined because he knew that this is not going to happen. So the king is entering into the Jerusalem. The reason is king is entering into the Jerusalem to reconcile all mankind, to be worshipped as a king. So the king is entering, who's the eternal king, the king of kings, who appoint the kings. Then he's saying, even though the Moses, or even, I can read those prophecies there from the Old Testament when the David and the King Samuel, 2 Samuel 22:50 and the Isaiah 18:49. What was the reason Jesus was entering into the kingdom? He was entering into the kingdom, both of which speak, let me take my glasses. Both of which speak of the time when God will be praised among the Gentiles. So the reason was that because of Jerusalem, in the holy nation, God appointed, God chosen it, they failed to fulfill the mission of the God to the salvation for the all mankind. That is the reason God was sending them into the slavery. So he is coming and entering to drink the cup of the suffering, because he was destined to do that. Why? Because he has to take that. Because if he would not take it, he would not be able to save all mankind. So the king is coming to save and his reward is in his hand. Why? Because वो अपनी जान का दुख लेके ही अपने रिवार्ड को पाएगा. किसको पाएगा? अपनी कलीसिया को पाएगा, अपने चर्च को पाएगा, अपने बच्चे को पाएगा, जो कि ऑलरेडी खुदावंद के थ्रोन पर जा चुका है. So then he said, be the praise among the Gentiles, and then also the Roman is testified about that too. And in order that the Gentiles might glorify God for his mercy, as is written, therefore I will be praised you among the Gentiles and sing and sign to your name. Sing to your name. So God, he was having empty home syndromes. जब बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं तो माँ बाप की क्या हालत होती है कि उनको एम्प्टी होम सिंड्रोम शुरू हो जाते हैं, कि वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, वो बच्चे रेस्टलेस रहते हैं. इसी तरह हमारा आसमानी बाप जो कि बादशाहों का बादशाह था, वो रेस्टलेस था. वो तब तक रेस्टलेस था जब तक वो अपने बच्चों को अपनी प्राइस, अपनी जान का फिदिया देकर अपने बच्चों को वापस ना ले सकता, ताकि सारी दुनिया जो है ना उसको अपना बादशाह माने. इसी तरह खुदावन को हम्बल होकर जमीन पर आना पड़ा, जैसे उसने. और फिर उसके बाद डिट्रॉनमी में मूसा ने भी कहा कि which say the time will comes when the Gentiles will rejoice with the Jews. This is the very important and very important time in the history that God has done for us. You know, he was not only for the Jewish, he was for the entire creation. He was all Gentiles. He was coming to do this, combine Jews and Gentiles together and take them under his wing as his children, so then he can be glorified among all the nations. So this was the prophecies about that Jesus was. All the prophecies fulfilled into the Jesus when he was entering into the Jerusalem. And we can say Zechariah 9:9 maybe वो क्या कहता है कि अभी फ्याज भाई ने इसके बारे में पढ़ा है, मैं उसको दोबारा पढ़ूंगी कि खुदावन बार बार, और ये इस्राएल की बदकिस्मती है कि वो खुदावन के इस कलाम को समझते नहीं थे. तो अब ज़करिया 9:9 में वो कह रहा है कि the coming king of Zion, the coming kings, which is the coming king. यशाया ने ये prophecies, मैंने पहले भी बताया कि वो 18 साल की उम्र में था, वो लीवाई था, वो prophet, वो priest था. तो जब वो बेबीलोन की उस गुलामी में थे तो उसने ये prophecies खुदावन ने उसको दी. It was written in 520 to 518 BC. Rejoice greatly, daughter Zion, shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on the donkey, and on colt, the fall of the donkey. This is ये ayat जो है ना, God is sending again someone, he's decreeing it. Proclamation means like God has already said it. Whatever God said it is eternal. It never change. And God, whatever speak, it is there for eternity. So God has spoken to daughter Zion, which is the nation of Israel,
मैंने कहा है कि nation of Israel, they were divided into two kingdoms, the kingdom of north and the kingdom of southern. So आपको पता है कि 10 कबीले जो कि इफ्राइम जिनको लीड कर रहा था वो daughter of Zion थी, और daughter of Jerusalem जो कि Benjamin and Judah की kingdom थी, southern kingdom, northern kingdom. God is sending them through the prophet Zechariah, the priest Zechariah, that look at that, your king is coming. That means that your rock of salvation come out from that. And he's telling them, you know, he's coming, your king is coming victorious. The God himself, the king of glory, the Almighty One, he is coming down and being humble, but being humble, he will be able to succeed. He will be able to overcome the Satan, because we cannot overcome the Satan. God is telling us we cannot overcome the Satan unless we go into the condition of the ashes, and unless we make ourselves ashes, unless we make ourselves humble. So खुदावन जो कि बादशाहों का बादशाह, वो इतना humble हो के आ रहा है कि वो जमीन पे गिर गया, उसने अपने आप को मारा है, क्योंकि उसको पता था कि I have to do these things by myself to bring this, because I know that the mankind is not capable to take care of themselves. So these are my children, they are so weak. I made them and I am responsible for them. That is why I have to overcome and defeat the devil and take the key of the death and pay the ransom and reimburse all my creation back to me. This was the plan of God. This is what the moment the God, Jesus Christ, was entering into the Jerusalem as a king, that, you know, he was destined to suffer and died to bring many and save many. So then मैंने कहा कि जब daughter of Zion or daughter of Jerusalem, तो nation of Israel की हमेशा से ही यही रही है कि then they always look for the visible object. They don't see the God in the spirit. That God, who is the king of heaven and earth and king of kings, he is our spiritual God. He's not earthly God. So they always looking for the earthly warrior king. They don't know the king who is coming to save them. He is their savior, the Messiah. They always looking for a political Messiah, always looking for a general of army, always looking at the conqueror king, you know, who will go and fight the people onto the earth like other nations does. They are, until now, they are still looking for the Messiah who is from the government, such as like a, you know, they thought, you know, he's a Messiah. What is his name? Trump. They are looking like a Trump Messiah. They are not looking like a spiritual Messiah coming from God, coming home himself. So this is why, you know, the Jesus came onto the earth, and to fulfill the prophecies. There was many, we know that there was many prophecy. So our king is already came, and now he's coming back. He came to overcome first, in the first coming, he came to overcome the Satan. He came to take everything back, and now he's coming victoriously. He's going to come victoriously among all nations and rule over the whole earth. So we have to, we are such doing it. जब मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रही थी कि देन पास्टर इरफान ने कहा कि पहला पाम संडे तो जो था वो मतलब यीशु मसीह में कंप्लीट हुआ कि God has originated the Palm Sunday, which he has prophesied through his prophet, that he is coming, the king lowly coming, he's lowly and humbly, and he will overcome the Satan. So Jesus is this was already originated. Jesus originated that, but before that it was prophesied, which was originated onto the time that Jesus entered into the Jerusalem. And then after that, after the late 3rd century, the 4th century, the church in the Jerusalem, they make it national, they make it international. So all the believers celebrate this day, this important day, important time in the Bible history for all mankind, that we should commemorate this. Commemorate का मतलब है कि ड्रेस रिहर्सल करना, जैसे कि खुदावन ने उनको 7 ईदें दी थी, तो वो जूश जन वो अभी तक वो 7 ईदों की वो कमेमोरेट करते जा रहे हैं. वही ईदें खुदावन उन सारी ईदों को अपने अपॉइंटेड काम को अपने अपॉइंटेड टाइम पे उसने अर्थ पे सब कुछ कायम करना है, जो कि बाइबल में ऑलरेडी प्रोफेसाइज हो चुका है. तो हम जो कि क्रिश्चियंस हैं, we are the people, we are commemorating not just, you know, which has been happened, we are happily accepting that which has been happened for us.
So we are happy and joyously receive this king in our heart until he come fully and take charge to the whole earth. So we have to continuously spread this gospel and tell about these people that there is no other king. We are not worshiping any other king other than the God who is the King of Kings and who is coming soon. That is all. God bless you all. God bless you, sister Sunanda, इस खूबसूरत मैसेज के लिए। वक्त काफी ज्यादा हो चुका है। मैं आगे आने वाले जितने भी स्पीकर्स हैं सबसे बड़ी अदर नमाज पढ़ेंगे, प्लीज 3 मिनट का वक्त दरकार था, लेकिन उस पर ज्यादा भेजिएगा। सो पास्टर रशीद हमारे पास मौजूद हैं ऑनलाइन है, तो मैं चाहूंगा कि बुजुर्गों के बात के पर जरूर खुदा के कलाम में से हमारे साथ शेयर करें। पास्टर रशीद साहब, ओवर टू यू। मुख्तसर तौर पर 3 मरतबा में दरकार है, कोशिश कीजिएगा कि अपनी बात को ओवर टू यू पास्टर रशीद। ब्रदर रशीद, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप मेरी समाप्त मेरी आवाज आ रही है तो रिस्पॉन्स दीजिए। जी 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 पास्टर रशीद साहब जी, गुड इवनिंग। जी, आवाज आ रही है मुझे? जी जी कंटिन्यू करें। मैंने आपसे कहा कि इसी कलाम के हिस्से को के एतबार के हवाले से दिया जाए, सब मिलकर के कलाम से सीख रहे हैं। आप भी आज़ादी है आपको, जरूर आप अपनी कलाम बयान कर सकते हैं इस एतबार के हवाले से। सो जो वक्त मुतय्यन किया गया है मुझे वो 3 मिनट है, तो कोशिश कीजिएगा कि 3 मिनट के अंदर आप मसीह यीशु के जलाल व बरकत मीठे और फतह वाले नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम पाम संडे जो है वो मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर एक बड़ा नुक्ता जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और जो एक भेद है कलाम खुदा का वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हम पाम संडे या खजूरों का इतवार तो बड़े अरसे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है उस मकसद को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज उस मकसद को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो आए हम खुदा की कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और इसकी पहली 11 आयात जो है वो खुदा की कलाम में से सीखते हैं। कलाम अक़दस में लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और ज़ैतून के पहाड़ पर बैत फगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा होके, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। बल्कि लादू के बच्चे पर पास शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में भी फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे वाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर
खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये हवाला जो मैंने आप लोगों के सामने कोट किया है या आप लोगों ने सुना है, सो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर यरूशलेम में दाखिल होने को है। अभी खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल नहीं हुए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होने को है और वो अपने शागिर्दों से एक बात कहते हैं कि उस गांव में जाओ और वहां पर एक गदही है और उसके बराबर में एक बच्चा जो है वो बंधा हुआ है, उससे मेरे पास लेकर आओ। यानी कि जो बात मैंने पहले आपसे अर्ज की, बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह का एक मकसद था यरूशलेम में जाने का। यहाँ पर जब वो गदही के बच्चे को लेकर आते हैं तो कलाम अक़दस में लिखा है कि वो उसके ऊपर जो है वो कपड़े बिछाते हैं। आप लोग अक्सर इस बात को सोचते होंगे, समझते होंगे कि इससे पेशतर गधा जो है या गदही का बच्चा जो है उसे लोग किन अल्फाज के साथ जो है वो याद करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से कहा कि गदही के बच्चे को मेरे पास लेकर आओ, जब गदही का बच्चा खुदावंद यीशु मसीह के पास आया तो सबसे पहले जो है वो गदही के बच्चे पर जो है वो कपड़े डाले गए हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह शाहाना तरीके से जो है वो यरूशलेम में दाखिल होने को, क्योंकि मेरा और आपका यीशु जो है वो बादशाहों का बादशाह है। और जब वो यरूशलेम में दाखिल होता है तो आप देखें कलाम अक़दस में लिखा है कि लोगों ने जो है वो डालियां उसकी राह में बिछाई, लोगों ने जो है वो अपने कपड़े बिछाए। क्यों? जब गदही के बच्चे को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आए तो उसकी अहमियत बढ़ गई, उसकी कदर बढ़ गई। और खुदावंद यीशु मसीह भी जब उन जिंदगियों में आते हैं जिनका कोई अपना वजूद नहीं है, जिनकी कोई अपनी पहचान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं खिदमत में आया तो उससे पहले मेरी अपनी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जब यीशु मसीह मेरी पहचान बना तो आज खुदावंद का शुक्र है कि पूरी दुनिया मुझे जो है वो यीशु मसीह के नाम से जानती है। इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेते हैं या यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है तो फिर हमारी जो है वो पहचान बढ़ती है। तब जाकर जो है वो हमारी इज्जत बढ़ती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है, इज्जत तेरी वदाएगा यकूब दा खुदा। सो इज्जत जो है वो खुदा बढ़ाता है। जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिल होने का एक मकसद था, और वो ये मकसद था कि वो जो तल्लक, वो जो रिश्ता खुदा का और इंसान का अदन में टूटा था, उस रिश्ते को बहाल करे। हालांकि यीशु मसीह को पता था कि मैं जब यरूशलेम में दाखिल होऊंगा तो मुझ पर जो है वो जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे और उस पर जो है वो कोड़ों की बरसात होगी, उसके मुंह पर थूका जाएगा, उसे लान तान किया जाएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो मिशन खुदा ने अपने बेटे को दिया था, उस मिशन को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इस वक्त यरूशलेम में दाखिल होने को है। और आज भी बहुत सारे लोग खिदमत के मैदान में तो हैं, लेकिन उनको अपने मिशन का नहीं पता कि खुदा ने उनको मिशन कौन सा दिया है, उन्होंने जाना कहां पर है, उनकी डायरेक्शन ही नहीं है, उनको अपने रास्ते का पता ही नहीं है कि उन्हें जाना किथे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो बाप से एक मिशन लेकर आया, जो बाप ने एक मिशन जो है वो अपने बेटे को दिया, और वो मिशन था जुदाई को खत्म करना, वो मिशन था दूरी को खत्म करना, वो मिशन था खुदा से लोगों का मिलाप करवाना। और खुदावंद यीशु मसीह उस मिशन को पूरा करने के लिए जो है वो यरूशलेम में दाखिल हुए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए
तो वहां पर हलचल मच गई कि ये कौन आ गया, ये कौन आ गया है। तो लोगों ने कहा ये नासरत का नबी यीशु है। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके पास मिशन होगा, जब आपके पास बुलावा होगा, जब आपके पास विजन होगा, तो आप जब कभी किसी भी इलाके में जाएंगे तो वहां पर हलचल मच जाएगी। ये एक गवाही मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं कि जब हम हैदराबाद में क्रूसेड करने को थे तो उससे पेशतर 3 दिन लगातार क्रूसेड करवाए गए ताकि हमारा क्रूसेड जो है वो फ्लॉप किया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की पाक मर्जी थी और खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वहां पर बड़ा जबरदस्त काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे गवाहियां हैदराबाद से मिल रही हैं, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे एक बात जो सुनने को मिली, लोगों ने कहा, पादरियों ने कहा, एकड़ा पादरी आ गया जेड़ा कराचियों आके थे हैदराबाद क्रूसेड करवाने दिया। लेकिन जब आपके अंदर खुदा के कलाम की कुदरत है तो फिर उस इलाके में हलचल मचती है, फिर उस इलाके में जो है वो आप रूह को जीतते हैं, फिर आप जो है वो रूह की रहनुमाई करते हैं। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का एक मकसद था कि वो मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि कौमों, कबीलों, उम्मतों के लिए जो है वो निजात के काम को कंप्लीट करे। मेरे साथ एक हवाला देके इसको मैं वाइंड अप करता हूं। मुकाशवा उसका 7वां बाब और उसकी नामी आयत मुकस्सा को कोई भी जो है वो मेरी रहनुमाई कर दे प्लीज। मुकाशवा 7वां बाब और उसकी नामी आयत, फिर हम इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह का एक ही मिशन था कि वो लोगों को जो है वो बाप से मिलवाए, वो लोगों को जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत में लेकर जाए, और वो जो काम खुदा ने अपने बेटे को नजात के पर्पस से दिया था, वो उस पर्पस को, उस मकसद को जो है वो पूरा करे। अगर किसी ने हवाला निकाले तो प्लीज मेरी रहनुमाई कर दे ताकि हम आगे बढ़े और इसको वाइंड अप करें। सो खुदावंद यीशु मसीह का एक मकसद था यरूशलेम में दाखिल होने का। जी मुकाशवा 9 बाब, मुकाशवा 7 बाब वर्स 9। जी, उसमें लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है। हाँ जी, कलाम मुकद्दस के इस हिस्सा में जो मेरी अभी प्यारी बहन ने पढ़ा, कलाम खुदा में लिखा है कि हर एक कौम में से, हर एक उम्मत में से, हर एक लुगत में से लोग जो है वो उस जगह पर मौजूद हैं, और उनके हाथों में कौन सी डालियां हैं? खजूर की डालियां हैं, और उनका शुमार नहीं है, आप उनकी गिनती नहीं कर सकते, आप उनको गिन नहीं सकते। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुदावंद यीशु मसीह इस मकसद के लिए जो है वो आज यरूशलेम में दाखिल हुए हैं ताकि बहुत सारी रूहों को जीत कर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के तख्त के सामने लेकर जाएं। और वहां पर लिखा है, वहां पर हर एक कौम से लोग मौजूद हैं, हर एक कबीले से लोग मौजूद हैं। वहां पर ये नहीं लिखा कि वहां पर मसीही लोग जो है वो मौजूद हैं। आप किसी गलत फहमी में ना रहें। वहां पर लिखा है कि वहां पर हर कौम से, हर उम्मत से, हर लुगत से जो है वो लोग वहां पर मौजूद हैं, और उनके हाथ में जो है वो खजूर की डालियां हैं। जिस जरा आगे थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा मेरी। जी, आगे उसमें लिखा है कि और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। आमीन आमीन आमीन। और चला चला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की है, खुदा की तरफ से है। नजात जो है वो खुदा की तरफ से बेशकीमत तोहफा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कीमती खून देकर जो है वो बहाया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने कीमती खून से खरीदा। आज यीशु मसीह अगर यरूशलेम में दाखिल हुए हैं तो कौमों के लिए, कबीलों के लिए, उम्मतों के लिए, और वो लोग पुकार कर, चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि निजात जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए है और यीशु मसीह की तरफ से है। निजात का काम यानी कि जो काम, यानी कि जो मिशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि खुदा ने अपने बेटे को एक मिशन दिया
और वो निजात का मिशन था। आज भी हमें अपने मिशन का पता होना चाहिए, हमें अपने गोल का पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी खिदमत है, खुदा ने हमें कौन सा गोल दिया। खुदा ने अपने बेटे को भी गोल देकर भेजा, एक मिशन देकर भेजा। आज मिशन का पता ही कोई नहीं कि हमारी जिंदगी में कौन सा मिशन है, हमें खुदा ने इस जमीन पर कौन सी खिदमत के लिए चुना है, खुदा ने मुझे और आपको कौन सा गोल दिया है। आज इस बात को जानने की अशद जरूरत है, इस बात को समझने की अशद जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह आज अगर यरूशलेम में दाखिल हुए हैं तो बहुत सारी कौमों, कबीलों, उम्मतों को जो है वो आज वो खुदा के हजूर जमा होने के लिए जो है वो आज यरूशलेम में दाखिल। उस पर सियासत की गई, उस पर कोड़े बरसाए गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसकी पसली में नेजा मारा गया। सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं बल्कि कौमों, कबीलों, उम्मतों के लिए जो है वो ये काम किया गया है, ताकि कोई भी शख्स जो है वो हमेशा की जिंदगी से बाहर ना रह जाए, ताकि कोई भी शख्स निजात से महरूम ना रह जाए, ताकि कोई भी शख्स निजात से बाहर ना रह जाए। और निजात सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरे और आपके यीशु मसीहा की तरफ से है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया ब्रदर रशीद, आपने अभी हमें पास्टर सदीक ने भी पास्टर सदीक ने भी अभी ज्वाइन किया है। गुड इवनिंग पास्टर सदीक। सर अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बराए करम मुझे जवाब दीजिए। पास्टर सदीक। हाँ जी सुन रहा हूँ मैं। जी सर, गुड इवनिंग पास्टर, कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। खुदा का शुक्र है, आप सुना। पास्टर आज हमने सिलसिला कुछ इस तरह रखा है कि खजूरों के द्वार के हवाले से तमाम जितने भी हम सब मिलकर बाकी कलाम में से सीख रहे हैं। तो वक्त आज हम खजूरों के द्वार के हवाले से तमाम जितने भी खुदा के खातमे और खातमा यहाँ पर जो मीटिंग पर मौजूद हैं, सब अपने अपने ख्यालात का इज़हार खुदा के कलाम के वसीले से कर रहे हैं, ताकि मिलकर हम सब खुदा के कलाम से सीख सकें। तो आपको भी पूरा मौका दिया जाता है कि वक्त को अमीले का रखते हुए, गली में जानते हुए 3 से 4 मिनट का वक्त जो है तमाम वाजिन को दिया गया है। तो इसी वक्त के अंदर रहते हुए आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। सो खजूरों के द्वार के हवाले से जो कुछ भी खुदा करो अपनी बात का जरूर हमारे गोश गुजार करें, ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को बता सकें। ओवर टू यू पास्टर सदीक। मेरे लिए मुश्किल है, मुझे खांसी बहुत आती है, तो इसलिए अच्छा मैं माजूद चाहूंगा कि बीच में खांसी आएगी तो फिर रिकॉर्डिंग खराब होगी। चले ठीक है, चले आए वक्त को गली में जानते हुए। शुक्रिया बात साहब, शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का, इसके लिए भी हम मशहूर हैं आपके। आए वक्त को गली में जानते वक्त काफी हो चुका है और सिर्फ हम 2 वाजिन जो पीछे बैठ रहे हैं, मैं और कोशिश करूंगा कि सब अपना माइक अगर आप ऑफ कर दें तो अगर आपको ये नागुज़ीर ना लगे तो अपना माइक ऑफ करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आए कुरान के कलाम में से जिस तरह हम सब ने मिलकर अब तक का हिस्सा डाला और हम सब ने कलाम में से आए, मैं चाहूंगा कि खुदा के कलाम में से मुख्तसर तौर पर हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जिनके पास खुदा का जिनकी बख्श कलाम है। मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब मुकाशफा की किताब, उसका 7 बाब उसकी 9वीं आयत जो अभी खुदा के बंदे ने तलावत की। मैं चाहूंगा कि इसी बात से इसी की एक कड़ी से कड़ी मिला के इस बात का आगाज में आगे करूँ, इस बात को आगे लेकर चलूँ। तो खुदा का कलाम ये मरहूम है मुकाशफा 7 बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं। खुदा की जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतनी बड़ी भीड़ है जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब में किया गया है, आया क्या वजह है कि इनके हाथ के अंदर खजूर ही की डालियां क्यों?
کیونکہ بائبل مقدس میں تو بہت سارے درختوں کا ذکر ہے، سفیدے کا، چنار کا، گولر کا، انجیر کا اور بہت سارے درختوں کا ذکر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کھجور ہی کے درخت کی ڈالیاں کیوں ہے؟ تو مختصر طور پر ہم آج خدا کے کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کہ درخت کے بارے میں تھوڑا سا ہم جانیں گے، کیونکہ دیکھیں جس طرح بائبل مقدس ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح درخت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور جس طرح انسان کے اندر زندگی پائی جاتی ہے بالکل اسی طرح درخت بھی جو ہے وہ زندگی رکھتا ہے، اور خدا کا کلام اس کی بڑی وضاحت سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر ہم ایوب نبی کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 7 سے 9 آیت کے ہم اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر بڑی وضاحت سے خدا کا کلام فرماتا ہے، کیونکہ درخت کی تو امید رہتی ہے، اگر وہ کاٹا جائے تو پھر پھوٹ نکلے گا، اور اس کی نرم نرم ڈالیاں موقوف نہ ہوں گی، اگرچہ اس کی جڑ زمین میں پرانی ہو جائے اور اس کا تنا مٹی میں گل جائے، تو بھی پانی کی بو پاتے ہی وہ شگوفے لائے گا اور پودے کی طرح شاخیں نکالے گا۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے، انسان کے اندر زندگی کا سانس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح خدا کا کلام فرماتا ہے کہ درخت کے اندر بھی کیا ہے؟ زندگی ہوتی ہے، وہ بھی زندگی رکھتا ہے، اور جیسے ہی وہ پانی کی بو پاتا ہے، جیسے اسے کہیں سے کوئی تقویت یا کوئی خوراک مہیا ہوتی ہے، فوراً اس میں سے نئی شگوفے نئی کوفتیں نکل آتی ہیں، اور وہ درخت جو ہے دوبارہ کیا ہے؟ وہ بار بار ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کا جو ہمارا مرکزی موضوع ہے، جو ہمارا کلیدی آج کا جو مفہوم ہے وہ ہے کھجوروں کے اتوار سے متعلق آج ہم سب خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں۔ اسی جس طرح میں نے اپنی بات کا آغاز کیا کہ ایک بڑی بھی مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ کھجور کی ڈالیاں لے کر کھجور کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ کھجور کا جو درخت ہے یہ کم پانی والی سطح کے اوپر بھی جو کیا ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے۔ کھجور کا جو درخت ہے اگر آپ نے دیکھنا ہوگا تو صحرائی علاقوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ یہ درخت ملے گا۔ عرب کنٹریز کے اندر جہاں پر پانی کی بہت زیادہ شدید قلت ہوتی ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ایک میجر ان کی ریسورس ہے وہ کھجور ہی ہے، اور میڈیکل سائنس اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ 2 کھجوریں تقریباً 1 گندم کی روٹی کے برابر یا اس کے مترادف ہے۔ اور نہ صرف یہی بلکہ کھجور کے درخت کی جو اہمیت ہے وہ بائبل مقدس میں بڑی وضاحت سے اور بڑی ڈیٹیل میں، بہت لمبا یہ اسکرپچرز ہے، بہت لمبی یہ اسٹڈی ہے، لیکن میں اسٹڈی کے بارے میں نہیں جاننا چاہوں گا۔ بڑی تفصیل سے پرانے عہد نامہ نئے عہد نامہ کے اندر سے بہت ساری حوالہ جات موجود ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جتنا وقت دیا گیا ہے اس کے اندر ملوث خاطر رہتے ہوئے اس وقت کے اندر اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں۔ دیکھیے کھجور کے درخت کی اہمیت سے کیا مراد ہے کہ دیکھیے کھجور کا جو درخت ہے اس کو صادق شخص سے یا ایک ایماندار شخص سے اس کو کیا دی گئی ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے۔ زبور 92 میں اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا کہ صادق کھجور کی مانند سرسبز ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، خدا کا بندہ سلیمان نبی بھی غزل و غزلات کے اندر ایک انسان کو کھجور سے تشبیہ دیتا ہے، اور غزل و غزلات 7:7 کے اندر وہ فرماتا ہے یہ تیری قامت کھجور کی مانند ہے۔ ہاللیلویا۔ یعنی کہ قامت سے مراد کیا؟ تیرا قد یا تیری زندگی جو ہے وہ کھجور کی مانند، کیونکہ کھجور کا جو درخت ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے، اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام انسان کو یا صادق شخص کو کھجور سے تشبیہ دیتا ہے، اور وہ وضاحت سے کہتا ہے کہ تیری قامت جو ہے وہ کھجور کی مانند ہوگی، یا جس طرح کھجور جو ہے وہ قداور ہے اور وہ سال ہر سال پھل دیتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی کہتا ہے صادق شخص کو کہ تیری جو قامت ہے وہ کھجور کے درخت کی مانند۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت چیز ہمیں ملتی ہے کہ آیا بہت سارے لوگ بہت دفعہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ آیا کیا وجہ ہے کہ آپ ہر سال اس دن کو بڑے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں؟ بہت دفعہ غیر اقوام اور ہمارے بھی بہت سے لوگ جو اس طرح کے مختلف سوالات آئے دن آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ دیکھیے یہ خدا کی کلام کی صداقت ہے جو تقریباً تمام باعثین نے اس حوالے کا ذکر کیا، زکریا 9 باب اس کی 9ویں آیت کے اندر، کہ جہاں پر خدا نے اپنے بندے زکریا نبی کی معرفت نبوت کی، اور نبوت کیا تھی کہ اے بنت صہیون تو نہایت شادمان، اے دختر یروشلم خوب لڑکا، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اس نبوت کا جو اطلاق ہوا، جو نبوت جو پوری ہوئی، وہ متی رسول کی معرفت سے کی گئی انجیل اس کی 21ویں باب اس کی 5ویں آیت کے اندر جو تقریباً سب لوگوں نے اس کا ذکر کیا کہ صہیون کی بیٹی سے کیا ہے؟ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے،
बल्कि लादू के बच्चे। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर हमें मिलती है कि जब खुदा यीशु मसीह का शाहाना इस्तकबाल यरूशलेम में हुआ और लोगों ने अपने कपड़े उतारे, दरख्तों की डालियां उन्होंने खुदा यीशु मसीह के आगे रखी और क्या किया कि उन्होंने खुदा को होशाना के नारों से क्या किया, इस्तकबाल किया। यूहन्ना 12 बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर हम पढ़ते हैं। वहां पर भी क्या लिखा है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फकीर ने इस चीज को, इस मंदिर को देखा तो वो गुस्सा हो, रंजीदा हो गए, एकदम तैश में आ गए और तैश में आकर उन्होंने क्या किया, खुदा यीशु से तस्करा किया कि देख, क्या तू इनको नहीं देखता कि ये किस तरह की जुबान बोलते हैं, ये तुझे बादशाह कहते हैं, ये किस तरह तेरी हमद और तेरी सताइश करते हैं। तब खुदा यीशु मसीह ने उन्हें बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और क्या फरमाया मत्ती 21 बाब के अंदर, यहाँ पर हम देखते हैं बड़ी खूबसूरत खुदा के कलाम में से, तो उन्होंने उससे फरमाया उसकी 15वीं आयत के अंदर, मत्ती 21 बाब उसकी 15वीं आयत के अंदर, लेकिन जब सरदार कायनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखो तो खफा होकर उससे कहने लगे, तो सुनता है कि ये क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीर ख्वारों के मुंह से तूने हमद को कामिल कराया। और खुदा यीशु ने ये जो हवाला कोट किया, ये ज़बूर नबी की किताब उसका 8वां बाब उसकी 20वीं आयत से ये हवाला खुदा यीशु मसीह ने उनके सामने रखा, तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीर ख्वारों के मुंह से कुदरत को कायम किया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग हैं कि जो जब हम अपने मसीहा की इस तरह जय जयकार, इस तरह प्रशिश करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी भीड़ है कि जो आज भी मुखालफे मसीह की सूरत में इकट्ठी होकर सड़कों पर निकल आते हैं और किस तरह मुखालफे मसीह बनकर मसीही और मसीही लोगों को और मसीह के कामों को क्या करते हैं, वो रद्द करते हैं। यहाँ पर भी एक बड़ी भीड़ का हम तस्करा करते हैं कि किस तरह वो भीड़ जो होशाना के नारे मारती है, लेकिन चंद ही दिन के बाद वो भीड़ जो है वो बदल जाती है, उनके नारों में तब्दीली आती है, उनकी सोचों में तब्दीली आती है, उनके ख्यालात में तब्दीली आती है, उनके इरादों में तब्दीली आती है और वही लोग जाकर हेरोदेस बादशाह के आगे, पैंतुस पिलातुस के आगे इस चीज का जिक्र करते हैं कि बराबा को छोड़ दे और इसे सलीब दे, सलीब दे, सलीब दे। फिक्र इस बात की है, सोचना इस मौजू के ऊपर यहाँ पर है कि क्या हम उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं कि जो भक्ति तौर पर होशाना के नारे लगा रही है, जो भक्ति तौर पर दुनिया की देखा देखी रस्मी तौर पर निकलते हैं सड़कों पर और जोर शोर से नारे लगाते हैं। क्या हम उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं है, या क्या हम उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं जो चंद एक दिन के बाद निकलते हैं और उसी मसीहा को जिसको चंद दिन पहले हमने अपने दिलों में, अपने घरों में वेलकम किया और कुछ ही दिन के बाद हम वक्ती जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हम उसे डिनाई करते हैं, उसके अजली रब्बी कफारत को डिनाई करते हैं। और हम भी बहुत सारे ऐसे जो बराबर हमारी जिंदगी में मौजूद हैं, हम उन्हें उसके मुद्रा देते हैं, उसके बराबर लाकर खड़ा कर देते हैं। जहां तक मुमकिन था मैंने कोशिश की कि मुख्तसर तौर पर इस वाक्य को आप तक बयान कर सकूं। तो हासिल आज का कलाम यही है कि जहां तक हो सकता है बुजुर्ग के इस की जो तालीम है, जो खूबसूरत तालीम हम सब ने एक दूसरे से मिलकर सीखी, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद ने हम सबको खुदावंद के इस बरहत कलाम के वसीले से बरकत बख्शी है और आगे को भी हम इस कलाम को आगे लेकर चलेंगे और रहती जिंदगी तक होशाना के नारे मारेंगे और हमेशा अपने मसीहा का, अपने बादशाह का इसी तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। ओवर टू यू सिस्टर नसीर, ओवर टू यू सिस्टर नसीर। अब सिस्टर नसीर इसे वाइंड अप करेंगे और मैं चाहूंगा, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है मुख्तसर तौर पर, इसलिए भी मैंने ज्यादा वक्त नहीं लिया। मैं चाहूंगा और इसके बाद हम आखिरी दुआ करेंगे और कलमा से ओवर टू यू सिस्टर नसीर। जी, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और सबके मैं शुक्रगुजार हूँ कि सबने इस पर बात की है और सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। तो जो मेन चीजें हैं इसमें वो हमें ये याद रखने की है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो शाहाना तौर पर जो है, हमें चारों अनाजील में जो है इस बात का जिक्र मिलता है और वो इस बात का जिक्र करती हैं कि चारों अनाजील के खुदावंद यीशु मसीह जो है वो गद्दी के बच्चे पर सवार होकर जो है वो यरूशलेम में बड़े ही फातहाना अंदाज से, शाहाना अंदाज से जो है वो उसमें दाखिल होते हैं।
اگر ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کریں جس میں لکھا ہے تو اس میں اگر ہم اس کے پیچھے جائیں تو اسی جو ہے اسی باب کی 20 باب کی جو 17 آیت ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں یروشلم میں جاتے ہوئے جو اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ تیسری بار جو ہے خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اپنی اذیت ناک اور جو بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ دکھ جو ہے وہ پیش آنے ہیں، جو موت کی جو ہے وہ پیشن گوئی جو اپنے شاگردوں کو وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم جو ہمارے لیے جو آج پام سنڈے کے حوالے سے جو جاننے کے لیے ضروری ہے، مطلب کہ اگر ہم پام سنڈے پہ بات کر رہے ہیں تو صرف ہمیں پام سنڈے پر ہی فوکس کرنا چاہیے، ہمیں صرف اسی کو کرنا چاہیے کہ ہم جو ہیں اسی کو ٹاپک کو لے کر چلیں اور اسی پر ہم بات کریں۔ تو ہم چاروں اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ چاروں میں جو ہے وہ گدھا اور بچے اور اس کا ذکر ہے، خدا یسوع مسیح فاتحانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں، خدا یسوع مسیح جو ہیں، حالانکہ خدا یسوع مسیح جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو پتہ ہے کہ میں یروشلم میں کس مقصد کے لیے داخل ہو رہا ہوں، کہ میرے اوپر کیا کیا مصیبتیں پریشانیاں یا مطلب جو ہے وہ موت تک مجھے جو ہے وہ لے جایا جائے گا، خدا یسوع مسیح جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو، لیکن خدا یسوع مسیح پھر بھی جو ہے بڑے ہی مطلب جو ہے فاتحانہ انداز سے جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر جو بھیڑ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھیڑ کا بھی ذکر ہے کہ بھیڑ جو ہے وہ بہت زیادہ بھیڑ ہے، اور اس بھیڑ میں جو ہے وہ لوگ خدا یسوع مسیح کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ کپڑے بچھاتے ہیں اور کھجوروں کی ڈالیاں لے کر جو ہے اپنے بادشاہ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس میں تھوڑا سا اگر ہسٹری میں جائیں تو ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل قوم جو ہے ان کا بادشاہ جب اس میں داخل ہوتا ہے، جب وہ دروازوں سے جو ہے شہر میں داخل ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو دروازے ہیں گیٹ جو ہیں وہ بہت اونچے رکھے جاتے تھے کیونکہ بادشاہ جو ہے اپنی سواری پہ بیٹھ کر اس میں داخل ہوتا تھا۔ اسی طرح سے وہ جو زبور 24 زبور جو ہے وہ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ اونچے کرو صرف دروازے، کہ اس میں سے خداوند جو ہے وہ بادشاہ، اور وہ بادشاہ جو ہے اسرائیل کا بادشاہ جو ہے وہ اس میں داخل ہوتا ہے، کہ وہ جو دروازے ہیں آپ اتنے اونچے رکھو کہ تاکہ جب وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر اس میں داخل ہو تو اس کو کوئی پریشانی یا دقت نہ ہو۔ اس لیے 24 زبور جو ہے وہ داؤد جو ہے وہ اس میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح جو ہے یروشلم کے گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو وہ گدھی کے بچے پر داخل ہوتے ہیں، اور جو ہجوم ہے وہ ان کو بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اس بات کو اپنے ذہن میں لے کر آتی ہے کہ جس طرح سے داؤد بادشاہ جو ہے وہ داخل ہوا تھا یروشلم میں فاتحانہ انداز سے، پھر اس نے جو ہے ہمیں مطلب اپنے یہاں پر سلطنت قائم کی، اس نے اپنے یہاں پر حکومت قائم کی، اور داؤد کا جو تخت ہے وہ جو ہجوم ہے وہ اپنے شریعت کو انہوں نے یقیناً پڑھا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اس بات سے واقف ہے کہ جو ہے ان کا بادشاہ جو ہے وہ ایک دن آئے گا اور وہ جو بادشاہ ہے وہ ہمیں فتح دلائے گا۔ ہجوم جو ہے وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہمارا جو بادشاہ جو داخل ہونے والا ہے، جو مسیحا ہے، جن لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو پہچان لیا کہ وہ مسیحا آئے گا اور وہ ہمارا بادشاہ ہوگا اور وہ ہمیں جو ہے غلامی سے چھڑائے گا۔ لیکن وہ جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ جو ہے وہ روم کی غلامی سے چھڑانے کی وہ جو ہے ان کے ذہن میں بات ہے، تو اس لیے وہ خدا یسوع مسیح کے جو ہے وہ بادشاہ استقبال کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ اب یروشلم میں داخل ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روم کے ساتھ جو ہے وہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا، ہم سب کے ساتھ ہوگا، ہمارا لیڈر بنے گا، اور ہم روم سے جو ہے چھٹکارا پا لیں گے، غلامی سے ہم نجات حاصل کر لیں گے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا مقصد صرف ان کو جو ہے وہ دنیاوی جو ہے وہ غلامی سے چھٹکارا دینا نہیں تھا، خداوند یسوع مسیح کا مقصد کچھ اور تھا۔ یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو چاروں اناجیل میں جو ہے وہ پکارتے ہیں کہ ہم چاروں اناجیل میں جو بھی ہجوم جو ہے وہ پکارتا ہے، جو مین چیز ہے وہ اس بات پہ فوکس کرنا ہے کہ جو ہجوم جو پکار رہا ہے وہ کیا پکار رہا ہے، تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اس کے 38 سے 39 آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ اور اسی طرح سے اگر ہم مرکز کی انجیل 11 باب اس کی 10 آیت میں دیکھیں تو یہاں پر ہجوم کیا کہتا ہے، وہ یہاں پر بھی وہ یہی کہتا ہے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے،
आलमे बाला पर होशाना। और मत्ती की इंजील 21 बाब उसके 9 आयत में ये लिखा है कि इब्ने दाऊद की होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशाना। और मत्ती की इंजील उसके 12 बाब उसकी 13 आयत में ऐसे 21 बाब उसकी 13 आयत में ऐसे लिखा है कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन जो चारों जो मतलब अंजील में जो जिक्र किया गया है, वो इसमें यही जिक्र किया गया है कि किस तरह से हजूम जो है वो किस तरह से उसको पुकार रहा है। अगर हम इस बात का जायजा लें कि वही हजूम जो है वो एक हफ्ते बाद जो है खुदाम यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा देता है, और वही हजूम जो है वो खुदाम यीशु मसीह के खिलाफ नारे लगा लगा के कह रहा होता है कि इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसने गुनाह किया है, इसने मतलब ये किया है, ये मुजरम है, वही जो है वो खुदाम यीशु मसीह पर वो जो उसको वेलकम कर रहा है वही उसके खिलाफ बोल रहा है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो उन्होंने हजूम ने बोला है उसका मतलब या मकसद क्या है। तो पहले जो हम देखते हैं तो होशाना जो वर्ड है, हम इसको देखते हैं कि होशाना वर्ड क्या है। होशाना वर्ड जो है, वैसे तो हमें ये लगता है कि होशाना जो इंग्लिश में होज़ैना जो वर्ड है, इसका मतलब है खुदा की तारीफ हो, या हम खुदा की वर्शिप करते हैं, ग्लोरी टू गॉड, के खुदावन के नाम को जलाल मिले, और या हम फतह के नारे लगाते हैं और हम हुर्रे बोलते हैं जैसे हम फतह के नारे लगाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है इसका मतलब होशाना है। लेकिन अगर हम हिब्रू या इब्रानी जो है जहां से ये लफ्ज लिया गया है तो उसका मतलब देखें तो उसका मतलब ये है कि होशाना का मतलब ये है कि प्लीज सेव अस, कि हमें बचा, हमारे लिए कुछ कर, हमें इस गुलामी से छुड़ा। वो रूहानी गुलामी का उनका मकसद नहीं था, रूहानी गुलामी उनके जहन में ये बात नहीं थी। वो हमेशा बनी इसराइल कौम जो है वो दुनियावी गुलामी की बात ही करते हैं। तो होशाना का मतलब जो है, हम जो है हम तो इसको इस बात में लेते हैं कि ये मतलब जो है खुदा की तारीफ हो, खुदा की तारीफ के लिए या फतह के लिए ये नारा लगाया जाता है, हुर्रे। लेकिन जो बनी इसराइल के कौम उस हजूम के जहन में जो बात थी वो ये थी कि हमें बचा, हमें इस गुलामी से छुड़ा। और जो वो लफ्ज ये बोलते हैं कि जो खुदावन के नाम से आता है, तो ये जो बात है ये उन्होंने ज़बूर 118 में से लिया है। 118 उसकी 26 आयत में उन्होंने ज़बूरों में से ये आयत पढ़ी हुई है, इसलिए वो जो है इस बात को जो है वो यहाँ पर कोट करते हैं कि जो खुदावन के नाम से आता है। और आगे हम देखते हैं कि वो ये भी कहते हैं कि इब्ने दाऊद की होशाना। फिर हम ये देखते हैं कि वो कहता है कि हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, यानी कि वो जैसे मैंने पहले कहा है कि वो इस बात के उसमें थे कि ये दाऊद, जैसे दाऊद अपने ज़बूरों में भी जिक्र करता है, जैसे खुदा यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं इब्ने दाऊद हूं, तो उनका मतलब यह है कि जो इब्ने दाऊद है, जो दाऊद का बेटा है, जो दाऊद की नस्ल से आ रहा है, वो हमें गुलामी से छुड़ाने के लिए आ रहा है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि हमारे बाप दाऊद की बादशाही आ रही है, यानी वो उस बादशाह को, खुदा यीशु मसीह को अपना जमीनी बादशाह बनाने के लिए उस वक्त तैयार होते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आगे लिखा है कि आलमे बाला पर होशाना। तो हम इसमें देखते हैं कि आलमे बाला पर होशाना, पीस इन हेवन, के मतलब जो खुदा का जो आसमान पर जो है वो अमन हो, वो सुलह और सलामती हो। अमन और सुलह और सलामती का, आलमे बाला पर सुलह और सलामती का क्या मतलब है, क्या मकसद है, तो हमें इस पर जो है इस पर भी बात करनी है। देखें, जब खुदा बाप जो है वो बहुत कहर में है, वो बहुत गुस्से में है, जब तक हम जो हैं खुदा यीशु मसीह के वसीला से अपने बाप के पास नहीं आते। खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें बाप के कहर को कम करने के लिए जमीन पर आते हैं, ताकि बाप का जो गजब है वो हम पर जो नाजिल होने वाला था और जो होने वाला है हम उससे बच सकें। तो आलमे बाला पर जो जैसे कि सुलह है, पे सुलह और आलमे बाला पर जलाल का मतलब ये है कि खुदा बाप जो है वो बेटे के साथ मुत्फिक होकर या बेटे की कुर्बानी से जो है वो मुतमयन होकर, जब हम बेटे पर ईमान लाएं तो बेटे की सिफारिश से खुदा बाप का जो कहर है, जो खुदा बाप का जो गुस्सा है, वो हमारे लिए जो है वो सुलह में तब्दील हो जाए, वो हमारे लिए शादमानी में तब्दील हो जाए, वो हमारे लिए इत्मीनान में तब्दील हो जाए। वो बनी इसराइल कौम जो है वो उस आसमान पर सुलह की बात करते हैं, हालांकि आसमान पर तो कोई जंग नहीं है। क्या खुदा बाप जो है आसमान पर जंग कर रहा है? नहीं,
खुदा की आसमान पर कोई जंग नहीं है, अगर वो जंग है तो वो जमीन पर है, और खुदावंद यीशु मसीह उसी कहर को, उसी जंग को मौकूफ करने के लिए वो अपनी जान कुर्बान करता है, ताकि खुदा बाप जो है अपने बेटे की उस कुर्बानी से जो है वो खुश हो जाए और हमें जो है उस कहर से बचा ले। तो आगे हम देखते हैं कि आलम बाला पर जलाल जो है उसमें यह है कि खुदावन जो है इस बात को कि खुदा बाप जो है अपने बेटे की उस सुलह और सलामती, इसीलिए खुदा यीशु मसीह को अमन और सुलह का शहजादा कहा गया है, क्योंकि वो खुदा यीशु मसीह अमन और पीस को दुनिया में कायम करने आते हैं। हालांकि बनी इसराइल कौम जो उस वक्त उनका इस्तकबाल कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी कि ये बादशाह अभी आएगा और हमारे साथ हमें तैयार करेगा, जैसे माजी में सारे बादशाह उनके लिए करते आए कि उनको तैयार करते थे, उनको जंग के लिए तैयार करते थे, फिर वो जंग लड़ते थे और वो जंग में फतह याब होकर जो है उनका बादशाह उन्हें फतह दिलाता था खुदा के नाम से। तो वो यही समझ रहे हैं कि ये भी हमारे लिए है, लेकिन खुदा यीशु मसीह जो है वो अमन और पीस को लेकर आते हैं, ताकि वो जो अमन और पीस जो है खुदा बाप उसको कबूल करे और खुदा बाप जो है जमीन पर उस पीस को भी लेकर आए जो खुदा यीशु मसीह के वसीले से आती है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, हमें इस बात पर गौर करना है कि खुदा यीशु मसीह और पाम संडे जो है खुदा यीशु मसीह का वहां पर दाखला, हालांकि खुदा यीशु मसीह ये जानते थे कि मेरे पर क्या होने वाली है, अगर वो ऐसा होते तो वो मतलब चुपके से भी उसमें दाखिल हो सकते थे, अपने शागिर्दों के साथ हजूम के साथ यरूशलेम के गेट से जो है छुप के ऐसे किसी उसमें से दाखिल हो जाते और फिर किसी घर में जाके जो है वो सुकून से रह रहे होते, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जो है खौफ ज़दा नहीं हुए, और इसी सबब से जो है उन्होंने अपने शागिर्दों को भी इस बात का जो है वो एलानिया जो है इजहार उनके सामने ये किया कि बेशक दुनिया की कुव्वतें हमारे मुखालिफ हों, हमें उन पर गालिब आना है, हमें जो है फातेह होकर उन पर गालिब आना है। तो इसलिए हमारा खुदा यीशु मसीह जो है वो बड़े ही फातहाना अंदाज से दाखिल होता है, जबकि वो जानता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो अमन और सलामती को लेकर आने वाला है, जो आसमान पर सलामती है ताकि वो जमीन पर भी सलामती हो। वो उस बादशाही को लेकर आता है जो आसमान की बादशाही है, जो खुदा की बादशाही है, वो उसको कायम करने के लिए यरूशलेम में दाखिल होता है। तो खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। आमीन। तो और शुक्रिया आप तमाम मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा चले हम दुआ करेंगे, आखिरी दुआ करेंगे हम। मैं चाहूँगा कि आपको कौन दुआ करेगा? आपकी आवाज ओके। पैरों के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो खुदावन इस वक्त इस घड़ी के लिए खुदावन, क्या आपने हम सबों को एक दफा फिर इकट्ठे होकर अपनी इबादत करने का मौका बख्शा। हम सब खुदावन मिलकर खुदावन तेरी सताइश हुई, तेरे जिंदगी बख्श कलाम को सुना और खुदावन हम सबों ने बरकत पाई। मैं खुदावन जितने लोग अभी ऑनलाइन है सबके लिए खुदावन बरकत की दुआ चाहती हूँ। खुदावन एक एक जान के गिराने को, फैमिली को खुदावन बरकत दे। खुदावन हर दुख से, तकलीफ से, बीमारियों से, वबा से बचा के रख, ताकि वो सब्र खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने। तेरा शुक्र हो खुदावन, तूने खुदावन हमें संभाला हुआ है, हमें अपनी सताइश के लिए खुदावन बनाया हुआ है, ताकि हम सब खुदावन तेरी सताइश करें, तेरे नाम को बढ़ाएं, क्योंकि तू भी बढ़ियाई के लायक खुदा है, तू हम के लायक खुदा है, तू ही खुदावन तारीफ के लायक खुदा है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन हॉली मिनिस्ट्री के लिए खुदावन, कि आपने हम सबों को खुदावन एक खुदावन खानदान की सूरत में खुदावन इकट्ठा करता है खुदावन, और हम सब मिलकर खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावन आज के दिन है खुदावन, आपने खुदावन हम सबों को संभाला खुदावन, जहाँ जहाँ बाजार हुई खुदावन, आपने खुदावन वहाँ अपने पाक की बाढ़ को, अपने पाक रिश्तेदार को भेजा, सबको खुदावन सारी मीटिंग खुदावन अच्छे से हो गई। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, शुक्र हो खुदावन आज के खुदावन जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदावन,
कि आपने खुदावन हम सबों को खुदावन हमारी जरूरत के मुताबिक कलाम दिया, हमने खुदावन इसको सुना, खुदावन हमें खुदावन हिम्मत दे ताकि खुदावन हम सब मिलकर खुदावन इसको महज सुनने वाले ना बने बल्कि इस पे अमल करने वाले बने और अपनी जिंदगी में 30 मिनट 60 मिनट के 100 गुना फल लाएं और एक खुदावन इस कलाम को खुदावन दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सके। तेरा शुक्र हो खुदावन इन सारे कामों के लिए खुदावन जो आप करते हो हमारे जिंदगी में, ये सब कुछ मांगा और पाया तेरे कुदूस जलाल के बरकत। आमीन आमीन। शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, होती है जमीन पर भी हो, और रोज की रोटी आज हमें जिस अपने कर्जों को तू भी हमारे कर्ज हमें आजमाइश में बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तो चलाओ हमेशा से करेंगे। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त तमाम कलीसियों के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमात के में खानदानों में एक एक फर्द के साथ और ख़ास तौर पर और इसे जिम मिनिस्ट्री के साथ और इसी तरह खुदावंद की कौम बनी इसराइल के साथ और खुदावंद के शहर यरूशलेम के साथ अब से अब्दुल-आबाद रहे। आमीन। आमीन आमीन। एक बार फिर आप सबका आप सबका